For women to work in any organization, they need to be respected. They need to be appreciated for their knowledge and skills. चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़ा एलैबोरेट करें कि हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प यू इन फुलफिलिंग द ओवरऑल एम्बिशन ऑफ CLF. It's not about administering medicine to a baby or a child. It's more about how you take care of them, how you address to the mother. So what are those kinds of things that you incorporate to make sure कि empathy और humility का element intact रहे organization में? You don't have to be right every time. Be kind and you will be right every time. डॉक्टर अगर प्यार से बात कर लेना तो आधा मर्ज हल हो जाता है. Empathy is the foremost thing. It's more about care. It's more about prayers. It's more about support from that nurse to the family. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? I'm good. अच्छा, द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हवाले से आई हैव टॉक टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. उनमें से आपका रोल मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ह्यूमन साइड ऑफ द थिंग्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, ख़ासतौर पर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में. मुझे बताएं कि आपके एरियाज़ ऑफ कंसर्न में सबसे पहले टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वैल्यूज़. चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़ा एलैबोरेट करें कि हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प यू इन फुलफिलिंग द ओवरऑल एम्बिशन ऑफ CLF. Okay, so I've been in this organization for the past 9 years now. And I'd say that for an organization to grow and to reach somewhere, for example, from 5x to 10x, it can't just reach there without its people going along with it. So the people need to grow along with the organization, and as far as the people would go, the organization would go further. So in my 9 years in the organization, when I joined as an administrator at the civil hospital ER, and for a woman, this is not an ideal position because it involves a lot of public dealing. It involves a lot of it's a rough job. You have to deal with the police, you have to deal with the MS, with the government, with the stakeholders, with the repair and maintenance staff. So but I found that environment which was very enriching. I felt comfortable, I felt encouraged, I felt motivated when and on top of everything, I was confident that I can take decisions. So this confidence was given to me by the leadership that trusts in their people. You can't be right every time, but if you have support of the people in the organization, they kind of build a circle of comfort around you. Then you do things which you might not know are in your capacity. You grow larger than your sculpture. At Child Life Foundation, the culture it's not just a slogan on the wall. It is a quiet force that that shapes our decisions, starting from triage to the boardroom. And we have built a culture of kindness over a period of years. And it is based on certain values. We say that we have 5 values, and based on those 5 values, we have built this culture. So we say competence, compliance, compassion, teamwork, and humility. And we believe that each and every value enriches the other value. So, for example, a nurse who's working at Child Life Foundation, she has to be competent in the first place. She has to be very precise in her skills, number one. And then she knows that she has to apply her skills to save the lives. But that's not just it. Then she has to be compassionate above all. Because it's not about, administering medicine to a baby or a child. It's more about how you take care of them, how you address to the mother. And you soothe their troubled heart. You give them a word of affirmation that it's okay, your child will be all right, don't worry. So it's more about care, it's more about prayers, it's more about support from that nurse to the family. Just then her duty of administering medicine to the patient. And so she, most of the times when children they come for IV cannulation, they fear
and they fear a lot. मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. वो जब भी रिकॉल करती हूँ मैं तो आई यूजुअली स्माइल. एंड उसमें ये हुआ कि वेटिंग एरिया में सिविल हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बच्चे बैठे थे एंड दे वर बीइंग कॉल्ड थ्रू क्यू मैनेजमेंट सिस्टम. तो अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं जब वो हॉस्पिटल आते हैं. हॉस्पिटल की दीवारों से, नर्सेस के यूनिफॉर्म से, डॉक्टर से, कि शायद वो मुझे अभी अवामी ज़बान में कहते हैं कि वो सुई लगा देंगे. तो वो जब बच्चे का नाम आया और उसको क्यू नंबर से कॉल किया गया, वो क्यू नंबर पे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो जो ओपीडी कोऑर्डिनेटर था उसने बच्चे को नाम से कॉल आउट किया. तो वो बच्चा जो है बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ, और वो बाकी सब लोग खामोश थे एंड नोबडी न्यू वो बच्चा कौन है. और वो जो बच्चा था उसने कहा कि ओपीडी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि अब्दुल अहद, प्लीज़ अब्दुल अहद की मदर लेकर आ जाए उसको. तो बच्चे ने कहा कि मैं तो नहीं हूँ. सो दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाइड कि दिस इज़ अब्दुल अहद. तो बच्चे जब आते हैं इमरजेंसी रूम में और उनकी माएँ, वो एक फ़ियर लेके आते हैं, एक परेशानी के साथ आते हैं. सो व्हेन वी ट्रीट देम, we make sure that we treat them with compassion. We give them the care along with the medicine and along with the treatment. Their emotional needs are also being addressed. So emergency room में there is no one star. हम ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अगर ये इमरजेंसी रूम में आ जाएंगे ना तो आज तो सारे मरीज़ बच जाएंगे. तो इमरजेंसी में कोई एक स्टार नहीं होता. It is always a teamwork, and teamwork is not an option for us in the emergency. It is a survival for us. और टीम बिल्डिंग के लिए हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं. आज किसी का बर्थडे है, लेट्स गिव देम अ सरप्राइज़. केक काट लेंगे, उनको गिफ्ट देंगे, उनको कार्ड देंगे, और वो जो खुशी उनके चेहरे पे उस वक्त आती है, दैट बिल्ड्स द बॉन्ड बिटवीन द एम्प्लॉयज़ विच आर एक्चुअली फ्रॉम डिफरेंट केडर्स. समवन इज़ अ फार्मासिस्ट, वन इज़ अ फिजिशियन, वन इज़ अ नर्स, वन इज़ एन एडमिन, अ जैनिटोरियल. सो इनकी जेलिंग एंड बॉन्डिंग होती है इन छोटी छोटी सेलिब्रेशन से, बिकॉज इमरजेंसी रूम एक बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है. बिल्कुल. और उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंसी से काम करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ पेन एवरी डे एंड दैट पेन एक्चुअली अफेक्ट्स यू. तो उस पेन को टैकल करने के लिए बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई मोमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वी सेलिब्रेट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ एंड वी मेक श्योर दैट एवरीवन अटेंड्स दैट इवेंट. वी इनकरेज दोज एम्प्लॉयज़ जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है. सो likewise, we also support each other. I remember when I was administrator at civil hospital, मेरे पास एक जूनियर नर्स काम कर रहा था इमरजेंसी में. His name was Amir. And he came to me one day और उसने कहा कि मैडम मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, और मैं एक जूनियर नर्स हूँ, और मैं जब इमरजेंसी में आता हूँ तो मेरी ड्यूटी इतनी सख्त होती है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता अपने बाकी टाइम में, बिकॉज आई गेट टायर्ड सो मच. और ऑब्वियसली वो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करने के बाद यू डोंट गेट इनफ एनर्जी टू डू समथिंग एल्स. तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो आमिर, तुम ज़िंदगी में क्या करो. उसने कहा कि मैडम मैं बहुत छोटे इलाके से हूँ, मैं अपना और अपने वालिद साहब का नाम रोशन करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि लोग जानें कि आमिर एक नोन पर्सनालिटी है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, एक ऐसा नर्स है जिससे बच्चे सेहतयाब हो जाते हैं. तो मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो. उसने कहा मैडम मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं RN बनना चाहता हूँ. आई सेड ऑल राइट, आप एडमिशन लें and we will adjust your duties. In the first reaction on his face was he was not ready to it came as a surprise to him कि all right ये भी हो सकता है. So he said is this an option? I said yes. And then I was I moved to another role and then another role, and after 8 years I met him. After 7 years I met him at an award ceremony where I was on the roster and hosting the show, and I took his name and invited him to on the stage to receive the award, and I realized, oh my God, this is that Amir. And Amir was the RN at that time
in child life, and he had become a nursing instructor. Mashallah. So it is about giving opportunities, enough opportunities to the people who are working with you. If you give them opportunity at the right time, you not only develop them, but you also develop the foundation of the organization, because it's not just building and infrastructure that make an organization. ये लोग होते हैं जो मिल के ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, और उनका बिहेवियर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाता है. और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल, एक नर्स थी मेरे पास, बहुत अच्छा काम करती थी. शी वाज अमेजिंग एंड शी वाज वेरी, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट शी इज़ नॉट, वो एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी जो है वो कम है, या शी इज़ डाउन. तो मैंने उससे पूछा कि कोमल क्या बात है, इज़ एवरीथिंग ओके विद यू? शी सेड यस मैडम, आई एम इन अ फैमिली वे एंड आई डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू टेक माई जॉब फर्दर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट. एंड आई सेड डोंट वरी, we have this policy of maternity leave, and you can avail it whenever you want to. But at the same time, if you think that you can work on reduced hours for some time, and after you start feeling better, you can, after you join your duty after maternity, तो तुम अपना जो तुम्हारे hours missing है वो तुम उनको दोबारा से fill कर लेना, या दोबारा extra duty कर लेना. तो that was the time when जब एक nurse रिज़ाइन करने जा रही थी, जस्ट बिकॉज के शी वॉज इन अ फैमिली वे एंड शी थॉट कि शायद मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलेगी. टुडे शी इज़ द हेड नर्स ऑफ सिविल हॉस्पिटल एंड शी हैज़ 2 children, and both the children were born when she was an employee of Child Life. So that is the relationship of trust and comfort that we make sure that we give to employees. And I think which became the reason क्यों चाइल्ड लाइफ की 70% ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फीमेल्स हैं. बिकॉज and not only just 70% of the total employees are females, 52% of them are in leadership position. Okay. So that is something, you know. And Child Life has recently been awarded for best place to work for women, and which for me is कितने लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा कि ओ माय गॉड, व्हाट आर यू गाइज डूइंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू गेट दिस अवार्ड. तो व्हाट वी आर डूइंग, देयर आर 3 एलिमेंट्स कि हमने ये कल्चर, ये सेफ्टी, ये ग्रोथ, वुमेन इन द वर्क एंड द लीडरशिप कैसे बिल्ड किया. Number 1 is, for women to work in any organization, they need to be respected, which means that they need to be treated as professionals. They need to be appreciated for their knowledge and skills, and no biases attached. And the other thing is respect. You have to give respect to the women, and you have to appreciate them for their professional knowledge, for their skills, for their service delivery. You give them a safe environment. The culture of safety, it's not just built in one day. It is that, number 1, since when a woman comes to workplace, she needs a cleaner workplace. She needs a hygienic workplace. She needs, if a pick and drop can be provided, it will be convenient for her to reach to work every day. It's not about providing perks and benefits. It's about giving them comfort and safety to come to work every day. And the third thing is enough chances of giving them growth through learning, training, skills and development. टाइम के साथ ये चीज़ें जो हैं वो आपकी रिसोर्स को नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वर्जन बना देती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई जॉइंड चाइल्ड लाइफ एज 1.0 वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई वुड से आज आई एम एट
4.0 version of myself through the leadership and growth opportunities, through multiple training opportunities जो मुझे child life में मिली. I went for a director level course from ICMA and multiple such courses, जिससे आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बल्कि you also learn through the process, and it also then helps in your decision making in day-to-day basis. So this is how we build our leadership, our culture, and the teamwork is the key for it. And there is one value that we focus most on, it's humility. And we believe that everything we do, we have to stay connected to ज़मीन से जुड़े रहना है हमें, because if हम लोगों का इलाज कर पा रहे हैं, ये एक अल्लाह की देन है. और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो काम आपकी नौकरी भी है. इट्स ऑल्सो योर जॉब. सो दिस इज़ समथिंग which gives immense peace to you, because you work and at the same time you're working for a cause. So for us, the cause is saving the future of Pakistan in one line. But what are the factors behind why we believe that this is the cause for us? पाकिस्तान में हर रोज़ 1000 बच्चे मर जाते हैं 5 साल से कम उम्र. एंड हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट बिकॉज के ये बच्चे मर रहे हैं, बट बिकॉज कि हर बच्चा जो जा रहा है, जो ज़िंदगी की बाजी हार रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ लॉस्ट laughter, it is also a lost life, it is also a lost relationship. He could have been a brother, a sister, a spouse to someone in his life. So we are not just losing babies, children under 5, we are also losing millions of happy and healthy lives. And those lives could be professionals, they could be engineers, doctors, nurses, they could be professionals, businessmen. So by saving each child, we are saving a relationship, a chance of growth, a laughter in each life that we save. It is an assurity हर माँ के लिए, हर पेरेंट के लिए, कि उनका रिश्ता फर्स्ट ऑफ ऑल वो सलामत है, एंड दैट ऑब्वियसली मदरहुड. सो इट्स, हम जब बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो इट्स नॉट कि हम सिर्फ बच्चों को ट्रीट करें, वी आर ऑल्सो ट्रीटिंग द मदर्स इमोशनली, वी आर वाइपिंग देयर टीयर्स. और एक मदर के लिए, सिंस आई माई सेल्फ अ मदर, और मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, मैं बीमार हो जाऊँ खुद तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी, मैं कोई चीज़ अकम्प्लिश नहीं कर पाई फॉर विच आई वाज स्ट्रगलिंग, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी. अगर मेरी, आई हैव 2 daughters, अगर मेरी बेटी बीमार है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी, एंड देन एवरीथिंग फॉर मी कम्स टू अ हॉल्ट. तो इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोसेस थिंग्स, मेरे लिए वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, बिकॉज माई होल कंसर्न इज़ विद माई डॉटर. सो फॉर अ मदर, देयर children, no matter how at what stage of life they are, they are the prime source of peace, happiness, contentment and smile for a mother and for both the parents. But so अच्छा, एक चीज़ जो मैंने भी नोट की है, मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा से रही है, हमने बचपन से देखा है कि डॉक्टर अगर प्यार से बात कर लेना तो आधा मर्ज़ हल हो जाता है. सही है, हाफ द बैटल इज़ वन. और हमारे पेरेंट्स भी जानबूझ के ऐसे लोगों को देखते हैं, यार इस डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तमीज़ से बात नहीं करता, ये नहीं करता. तो एम्पैथी इज़ द फोरमोस्ट थिंग. और जैसे आपने माशाल्लाह, जैसे मैंने भी आपकी फैसिलिटीज़ विज़िट की हैं, तो मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ के डॉक्टर्स जो है ना, वी आर वेरी ओपन टू देम, और हम यहाँ तीसरी दफ़ा आएँ, चौथी दफ़ा आएँ, आँख बंद करके आते हैं, हमें पता है कि यहाँ हो जाएगा. और इससे पहले मैं डॉक्टर इरफान से बात कर रहा था, तो मैंने कहा समटाइम्स दे कंसिडर यू सेकंड बेस्ट टू द गॉड.
कि वी आर इन द सेफर हैंड्स। तो ये एम्पैथी का एलिमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि एम्पैथी, ह्यूमिलिटी एकदम से तो नहीं आती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स एजेस। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन योर कल्चर दैट यू हैव डेवलप्ड। खासतौर में देखा था बुक रीडिंग, कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी हैं, तो व्हाट आर दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू इनकॉर्पोरेट टू मेक श्योर कि एम्पैथी और ह्यूमिलिटी का एलिमेंट इंटैक्ट रहे ऑर्गेनाइजेशन में? Okay. So, first of all, it comes from the priorities the leadership of the organization has developed. तो जो सबसे अहम और जो बड़ी बात है वो ये कही जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि you don't have to be right every time. Be kind and you will be right every time. तो ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस आते हैं जब आप थोड़ा सा खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं, कलीग्स के दरमियान भी और पेशेंट्स के साथ भी, जब आपके पास एक ओवरवेलमिंग इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का। तो काइंडनेस इज़ द की टू आवर कल्चर। और उसके पीछे जो वैल्यूज़ जो ऐड हुई हैं वो बाय टाइम ऐड हुई हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ जो चाइल्ड लाइफ में की जाती है वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। हर बच्चा जो इमरजेंसी रूम में आता है और जब वो डिस्चार्ज होके जाता है, उसके मदर के मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि आप अपने बच्चे को इमरजेंसी रूम में लेके आए थे, क्या आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन हैं? तो उनके रिस्पॉन्सेज जो आते हैं उन पे फिर हमारा एक रिसोर्स है जो उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जिन्होंने ना का जवाब दिया कि हम मुतमईन नहीं हैं, उनसे पूछा जाता है कि वो क्या फैक्टर्स थे, वो क्या रीज़न था कि आप मुतमईन नहीं थे। एंड देन वी गिव फीडबैक टू द कंसर्न एम्प्लॉइज़। तो इस फीडबैक मैकेनिज़्म से भी हमने बहुत कुछ सीखा कि लोग जब आपके पास, जब पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है तो वो सिर्फ इलाज के लिए नहीं आ रहे होते, उनको बहुत सारी एफर्मेशंस भी चाहिए होती हैं, उनको बहुत दिलासे की ज़रूरत होती है। I'll share, एक बार आई वॉज डूइंग अ राउंड ऑफ द इमरजेंसी और एक मदर बिल्कुल परेशानी के आलम में भागती हुई आई और ER के दरवाजे को दोनों हाथों से खोला। शी वॉज होल्डिंग हर बेबी इन हर आर्म्स और वो बेसाख्ता, उनकी आंखें बंद थी, आंसू निकल रहे थे और वो बेसाख्ता कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। तो मैंने डॉक्टर को आवाज़ दी, बेल करते हैं हम, कोड ब्लू रन करते हैं, हमने कोड ब्लू रन किया और जैसे ही वो बच्चा हमने माँ के हाथ से लिया, द मदर कोलैप्स्ड ऑन ग्राउंड। बच्चे को हम रिससिटेशन रूम में हमारी टीम ले गई। द मदर वॉज लाइंग फ्लैट ऑन ग्राउंड और इमीडिएटली हमने रिससिटेशन मदर की स्टार्ट की। शी केम बैक। द फर्स्ट थिंग शी सेड व्हेन शी वोक अप और शी बिकेम कॉन्शियस, she did not ask what happened to me. She said, is my child okay? मेरा बच्चा ठीक है? So ये जो चीज़ें हैं, इनसे हमने सीखा कि सिर्फ ट्रीटमेंट is not our responsibility. Treatment with concern, treatment with care, and how important the relationship of a mother to her baby is. Understanding this is very important for our team, which includes doctors, nurses, pharmacists, everyone. जब वो, for us they may be another patient, but for them it is hope every time. सही बात। तो वो होप हमें उनको देनी है और वो रिफ्लेक्सेस हमें अपने टीम के डेवलप करने हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब करें और जो आउटपुट हो वो कंपैशन हो, एम्पैथी हो, वो केयर हो। तो ये सब लर्निंग्स और इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट्स इमरजेंसी रूम में हर रोज़ होते हैं जिनसे हम सीखते हैं और हम इन वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं उन एक्सपीरियंसेस से जो हम इमरजेंसी रूम में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबदा। और आप लोगों से अगेन गुजारिश ये है कि मैं जितने भी स्टेक होल्डर से मिला हूँ, मैंने ख़ुद भी फैसिलिटीज़ विज़िट की हैं, पेशेंट्स के पेरेंट्स से बात की है। आई फाउंड देम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशंस ओवरऑल एम्बिशन, ओवरऑल पर्पस। और जब भी इनके स्टेक होल्डर से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वाकई अगर आप अपने फ़ंड्स को ऐसी जगह डोनेट करेंगे
तो जहाँ पे आप ये समझते हैं ना कि हमारे बच्चे सेफर हैंड्स में हैं, तो यू विल बी अश्योर्ड ऑफ दैट। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपने जो फंड्स हैं, अगर आप चाहते हैं, ख़ास तौर पे कोई नहीं चाहता कि आपके फंड्स ऐसी जगह पे जाएं जहाँ के आप ट्रेसिबिलिटी ना हो, जहाँ पे आप ये सोचते रहें पता नहीं सही हाथ में गए नहीं गए। तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इज़ द राइट प्लेस फॉर ऑल द ज़कात, खैरात, सदक़ात। तो दिल खोल के फंड्स दीजिए, डोनेट कीजिए, ताकि CLF फाउंडेशन, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का जो एम्बिशन है, जो पर्पस है, वो फुलफिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you.